So, in the last class, in the chapter of periodic table, we tried to discuss what are S block, P block, D block, and F block elements. That means we tried to make you understand what are representative elements, what are your transition elements, what are your inner transition elements, and so on. Today, I will make you understand one more important thing. Okay, that is, I will try to make you understand how to write general electronic configuration, general electronic configuration for any block. Okay, here we will not write the electronic configuration for any specific element. Rather, what we will do is we will try to write the general electronic configuration for a single group, that not exactly group but a block. For example, if I want to represent the electronic configuration of S block element, okay, let us see how we can do it. But first let us understand, sir, S block में कितने ग्रुप्स आते हैं? सर, S का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इसीलिए S ब्लॉक में 2 ग्रुप्स ही आते हैं, दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. दैट इज ओनली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ओके, सो सर ग्रुप 1 में कौन कौन आते हैं? ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम. ओके, ये सब आ जाता है हमारे ग्रुप 1 में. सर ग्रुप 2 में कौन आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. Okay, and then the last one we have a radioactive element, so we won't discuss much about that. Okay, so these are the elements which we will be finding in our group 1 and group 2. So sir, what is the meaning of general electronic configuration? मतलब अब अगर ध्यान से देखिए सर, अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं, for any group 1 or group 2 element, that is any S block element, the valence electronic configuration will be ns1 to 2. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखें, for any S block elements, for any S block element, the valence cell general configuration can be written as ns1 to 2. ओके, सो सर ये आप कैसे लिखे देखते हैं. देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ओके, सो इसको और भी प्रॉपर करने के लिए हम लोग एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं. मैं ऐड करूंगा उससे पहले. ओके, एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं. मतलब क्या ऐड कर सकते हैं सर? हम लोग ऐड कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाय ns1 to 2. फॉर एग्जांपल देखो, for example, I want to write down the electronic configuration for lithium. What will be it, sir? 1s2, 2s1, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो 1s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम का. सर हीलियम फॉलोड बाय 2s1, ऐसे लिख सकता हूं. उसी तरह से मैं अगर बेरिलियम के लिए लिखना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2. तो यहां देखिए, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि 1s2 है, फॉलोड बाय 2s2. नाउ टेल मी, isn't it satisfying the general electronic configuration? अगर मैं n is equals to 2 पुट कर देता हूं यहाँ पे, n is equals to 2, तो पहले वाले केस में 2s1 आ रहा है, सेकंड वाले केस में 2s2 आ रहा है. यहाँ पे एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज हीलियम आ गया, यहाँ पे एक और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज योर हीलियम आ गया. क्या ये क्लियरली समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर. उसी तरह से मैं अगर सोडियम के लिए लिखूंगा या मैग्नीशियम के लिए लिखूंगा, प्लीज पे अटेंशन सर एंड अंडरस्टैंड. फॉर सोडियम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6,
and then we have 3s1. Now have a close look at 1s2, 2s2, 2p6. If you have a close look, you will find that 1s2, 2s2, 2p6 is the electronic configuration for whom? Atomic number 10, neon, followed by 3s1. In the same way, for magnesium अगर हम लोग लिखेंगे तो बहुत सिंपल है सर, neon followed by 3s2. तो बताइए, can't I represent the general electronic configuration for s block elements as noble gas followed by ns1 to 2? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if you have written this, then I'll go and make you understand the general electronic configuration for p block elements. सब लोगों ने लिख लिया ये? हाँ सर। ओके, वेरी गुड. तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब हम लोगों को आप लोगों को बताएंगे द पी ब्लॉक. तो पी ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ओके, लेट अस सी. सो पी ब्लॉक, सो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं बेटा? तो मैंने क्या बताया, कैसे हम लोग पता करते हैं? पी का कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 ग्रुप्स आएंगे. कौन कौन से हैं वो सर? 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप एंड द 18th ग्रुप. ओके, दो हम लोग जब पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड्स पढ़ेंगे और जब हम लोग पीरियोडिक टेबल का बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अदर थिंग्स, तभी हम लोग जो है यहाँ पे हमारा 18th ग्रुप नोबल गैस को कंसिडर नहीं करेंगे, बट फिलहाल पी ब्लॉक में नोबल गैसेस आते हैं. तो ध्यान से देखिए सर, व्हाट शुड बी द कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनी पी ब्लॉक एलिमेंट? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? द वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनी पी ब्लॉक एलिमेंट विल कम अप टू बी. ध्यान से देखिए, ns1 to 2, np1 to 6. ओके सर, ये क्या हो गया? ns1 to 2, np1 to 6, ये क्या है? चलिए देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 13th ग्रुप का पहला एलिमेंट से फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं बोरोन को. ओके, सो बोरोन विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 5, क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा? वन एस टू, 2s2, 2p1. yes or no? Yes, sir. तो यहां पे भी देखो तो सिंपली क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर, एक नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाय ns1 to 2, np1 to 6. हाँ, हम लोग हमेशा लिख सकते हैं सर, हमेशा एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाय द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एलिमेंट के लिए. तो देखिए तो 2s2, 2p1, मतलब यहाँ पे n के प्लेस में अगर हम लोग 2 पुट कर देंगे, 2s 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 2s1, सॉरी यहाँ पे है 2s2, 2p1 to 6 हो सकता है, तो हम लोगों ने यहाँ लिया 1. ओके, वेरी गुड. तो देखते हैं एक रैंडमली एक और हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट लेते हैं. 15th ग्रुप का एक एलिमेंट लेते हैं, से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया नाइट्रोजन. In case of nitrogen, what is the electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p, you will get 3. Yes or no? Yes, sir. तो ध्यान से देखिए, 1s2 is helium's electronic configuration followed by क्या मिला? ns2, np3. तो ऑब्वियसली हम लोगों को ns2, np1, ns2, np2, np3, np4, np5, np6 ऐसे आएगा. ओके, सो
कभी भी आप अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो आप आराम से कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए NS122 NP126. Now, sir, why are we learning this? See, sir, in your NEET and as well as your JEE, there can be a simple, straightforward question. Which element among the following will have this particular general electronic configuration? ओके और तुम्हें दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और तुम्हें ऑप्शंस में दे दिया है 15th ग्रुप एलिमेंट, 6th ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ओके ऐसे करके दे दिया है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है, ओके जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कि ये एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, पी ब्लॉक को बिलोंग करता है, डी ब्लॉक को बिलोंग करता है, कहाँ बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो अभी तुम लोग एक चीज मुझे पूछ सकते हो, सर आपने बताया NS122, लेकिन सर यार जितना भी दो एग्जाम्पल आप दिए यहाँ पे तो NS2 ही हो रहा है, तो NS1 कब आया? NS1 तो कहीं नहीं आया। तो ध्यान से देखिए, मैंने 1 to 2 क्यों बोला? अभी हम लोग अगर 14th ग्रुप का एक एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे कि कार्बन 1s2 2s2 2p2, बट ध्यान से देख के बताइए तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्या ये ऑर्बिटल बहुत ज्यादा स्टेबल है? हाँ सर। 2p में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये स्टेबल है? नो सर। याद कीजिए सर, 2p में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा, ये तीनों इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, बहुत ही स्टेबल है। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तब भी ये इक्वल एनर्जी में है, तब भी ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। लेकिन 2 में इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 में नहीं है, ये कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। इसीलिए 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में जाएगा। तो कार्बन दिखता 1s2 2s2 2p2 है, लेकिन होता क्या है 2s1 2p3। 2p3 होते ही हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया, तो ये क्या हो गया 2s1। तो इसीलिए मैंने बोला NS122 NP126 होता है। क्या अभी समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और वो समझ में आया? ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके लिए लिखेंगे बेटा? डी ब्लॉक के लिए लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब मैं बताऊं उससे पहले तुम लोग बताओ डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होना चाहिए? सर 10। वेरी गुड। सो डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स होना चाहिए। और ऐसे क्यों? टेन ग्रुप्स क्यों होना चाहिए? बिकॉज डी का कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? डी ऑर्बिटल का कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसीलिए डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं? 10 ग्रुप्स होते हैं। और ये ग्रुप्स कहां से स्टार्ट होते हैं? थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होते हैं और एंड कहां होते हैं? 12th ग्रुप में एंड होते हैं। टोटली 10 ग्रुप्स आते हैं सर, थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप। तो सर हमारा डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हम लोग अगर लेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है सर, ध्यान से देखिए। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा n-1 d1 to 10 ns1 to 2। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज आया, यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे है n-1 d1 to 10 और ns1 to 2। सर ये है क्या? आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ध्यान से देखिए,
n-1 d1 to 10 ns1 to 2। क्या होता है जब भी हम लोग कोई डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो डी ऑर्बिटल फिल होता है वो एक शेल पहले का डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल 4s के बाद फिल होता है 3d, तो 4 - 1 is 3, तो n is equals to 4 लूंगा तो n - 1 3 आएगा। That means say we are writing the electronic configuration for scandium with atomic number 21. So what do we have? 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d1। तो यहां ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा सर ये पूरा तो मेरा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, नोबल गैस विद एटॉमिक नंबर 18। ओके, नियॉन के बाद कौन आता है सर? ज़ेनॉन, राइट? सो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? एटॉमिक नंबर 18। बट नाउ व्हाट वी आर हैविंग इज, ध्यान से देखो, फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, मतलब मैं क्या लिख दूंगा? n is equals to 4 लिख दूंगा। तो n is equals to 4 लिखूंगा तो ns2, ओके बढ़िया है। लेकिन यहां पे आया 3d, तो मैं क्या लिखूंगा? n - 1 into d1, तो n is equals to 4 लेंगे तो 4s2, 4 - 1 3d1। क्या ये समझ में आ रहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे हम लोग? हाँ सर। Okay, so in this way what we are going to do is we are going to write the general electronic configuration for different block elements. Okay, that is your s block, p block and d block elements. Okay, when it comes to your f, okay, मैं वो समझाऊंगा आप लोगों को, okay, as we move towards the end of the chapter. Okay, so फिलहाल हम लोग general electronic configuration for s block, p block and d block has been seen. आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, डीपली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एस ब्लॉक में एग्जैक्टली होता क्या है, पी ब्लॉक में होता क्या है, और डी ब्लॉक में होता क्या है, और एफ ब्लॉक में होता क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक के साथ। Remember, S block represents only metals. These are the groups in which only metals are present. That is your group 1 and group 2. Your group 1 and group 2 both will contain only metals. Only metals. So the group 1 metals are called as alkali metals. बताऊंगा क्यों। And the group 2 metals are called as alkaline earth metals. So, sir, why is it that my group 1 elements are called as alkali metals? Sir, all of the group 1 elements, they will react with water to form respective hydroxide. They will react with water to form respective hydroxide. Now this respective hydroxide is an alkali, water soluble base होता है, इसीलिए alkali बनाते हैं जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं alkali metals। मतलब क्या है सर, कैसे कैसे आप बता रहे हैं? देखिए, सोडियम with water forms sodium hydroxide. Potassium with water forms potassium hydroxide. तो क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सब क्या है सर? एल्कली है, तो इसीलिए हम लोगों को क्लियरली ये पूरा का पूरा ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। दूसरा चीज क्या याद रखेंगे?
these are highly reactive. These are highly reactive and strong metals. Highly reactive and strong metals होते हैं हमारे ग्रुप 1 एंड एज वेल एज ग्रुप 2 में. ओके. और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग एल्कली मेटल्स के बारे में इतना आप लोग लिख लिए हैं पहले. हाँ सर. सो और कुछ क्या प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता है एल्कली मेटल्स के बारे में. चलिए देखते हैं. सर all of these are generally soft metals. What is the meaning of soft metals? We can cut the metal piece using a knife. Simply using a knife हम लोग उस metal piece को cut कर सकते हैं, right? Simply bare hand से या फिर आपके knife को use करके. Knife को use करके आयरन को काट सकते हैं क्या? नहीं. ओके. सिंपल किचन नाइफ को यूज करके नहीं काट सकते हैं. बट ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का मेटल जो होते हैं ना, उनको आप लोग आराम से कट कर सकते हैं बिकॉज दीज आर जनरली सॉफ्ट मेटल्स. दे react explosively with water, especially sodium and potassium. Okay, they react explosively with water. That means water में add करो, they will react with sparks. Okay, so explosively they are going to react with water, especially कौन सा? Sodium and potassium. तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये भी बताया है आप लोगों को, राइट? क्या बताया है सर? एल्कली मेटल्स, दैट मीन्स हमारे ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये भी तो हम लोग आपको बता दिए हैं. सर इट स्टार्ट्स विद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. ओके. इन द सेम वे सर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं बताता हूं. उससे पहले इसके अंदर कौन कौन आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. ओके. अगर आप लोगों को लिखना है तो लास्ट वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी मैंने बता दिया, रेडियम होता है. सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. ओके. Now these elements are called as alkaline earth metals because they will also form bases when reacted with water, and they are majorly found under the earth's crust. Okay, they are formed in the form of compounds in the earth's crust directly. Okay, so that is why we are calling it as nothing but your alkaline earth metals. Okay, that is why we are calling them as nothing but your alkaline earth metals. Okay, so sir ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्या ये भी सबके सब मेटल्स हैं? द आंसर इज यस, 100% ट्रू. ये भी सबके सब मेटल्स हैं. तो सर इन दोनों के बीच में हमें क्या डिफरेंस है याद रखना. द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज +1, whereas for group 2 elements it is +2. सारे के सारे मेटल्स हैं, दैट मीन्स सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल. तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स जितने भी हैं हमारे, ये सबके सब एक एक एलिमेंट लूज करेंगे, whereas ग्रुप 2 के एलिमेंट्स दो दो एलिमेंट्स लूज करेंगे इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी. ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इसीलिए वो इमीडिएटली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. क्या ये समझ में आया? हाँ सर. ओके. बाकी प्रियंका और औरो?
हाँ सर। यस सर। ओके, चलिए, बहुत अच्छा बात। तो ये था हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो मुझे बताइए सर, एज यू हैव टोल्ड दैट एस ब्लॉक कंप्राइजेस ओनली ऑफ मेटल्स, तो हम लोग ना थोड़ा सा गेस कर रहे हैं और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि पी ब्लॉक विल कंसिस्ट ओनली ऑफ नॉन मेटल्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ओनली ऑफ नॉन मेटल्स। क्या आप लोगों को ऐसे लग रहा है? ऐसा कोई गेस आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं? But remember, P block consists of non-metals, metals, and as well as metalloids. यही तो खासियत है P block का. So the P block comprises of not only non-metals, but it comprises of non-metals, metals, and as well as your metalloids. It comprises of all the three. It has non-metals, metals, and as well as metalloids. Okay, so that is why the study of p block elements becomes very very important. तो जैसा हम लोगों ने पहले भी बताया सर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS122 NP126। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो P block is going to be such a block, sir, which is going to contain non-metals, metals, and as well as metalloids. On the upper part, of the P block, we will have our non-metals, and then in this way, a zigzag portion, we will be having our metalloids. हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ये सब चीज, टेंशन नहीं लेने का है. And towards the end, towards the bottom, we will be having metals. Okay, so this is how we will be finding your non-metals, metalloids, and as well as metals. If you see or go through any periodic table, आप लोगों को बहुत ही clearly तीनों अलग अलग कलर में mention किया होगा. That is your non-metals, metalloids, and as well as your metals. Okay, sir, अब P ब्लॉक में अगर तीनों के तीनों टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो क्या हम लोग स्पेसिफिकली कोई प्रॉपर्टीज बता सकते हैं? जैसे आपने बताया था वहां पे, दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स, दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म बेसिस व्हेन ट्रीटेड विद वाटर एंड सो ऑन. तो उस तरह से हमारे नॉन मेटल्स में भी अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग नाम है. चैकोजेंस हैं, हैलोजेंस हैं, राइट? ऐसे अलग अलग नाम हैं. हम लोग उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे बट लेटर ऑन, अभी नहीं हम लोग उन सबको इंक्लूड करेंगे. बट फिलहाल हम लोग को ये समझना है कि सर पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है सर, इसमें नॉन मेटल्स भी है, मेटलॉइड्स भी हैं, और एज वेल एज मेटल्स भी हैं. ओके, ये हम लोगों को याद रखना है. ओके, राइट. एंड देन सो पी ब्लॉक में सर जो नॉन मेटल्स होते हैं, they generally exist in the gaseous phase. ये जितने भी मेटलॉइड्स और मेटल्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये जनरली एग्जिस्ट करते हैं आपके सॉलिड फेज में. बिकॉज ये नीचे आते आते ये हेवी मेटल्स हो जाते हैं. हेवी मतलब इनका न्यूक्लियस और ये सब जो है ना काफी हेवी होता है, जिसके वजह से, एंड एज वेल एज क्योंकि ये मेटल्स हैं, तो जनरली ये क्या करते हैं, ये सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करते हैं. बट तुम्हारा नॉन मेटल्स जो है वो गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है, विद एक्सेप्शंस. ऑब्वियसली आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ओके, आयोडीन भी सॉलिड और लिक्विड, ये डिपेंड करता है. ओके, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. बट येट यही दोनों हैं जो तुम लोगों को एक्सेप्शन शो कर सकते हैं, जो कि लिक्विड में नहीं तो तुम लोगों का सॉलिड फेज में एग्जिस्ट कर सकता है. मेजरली ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस. ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस. चाहे आप नाइट्रोजन, N2, ऑक्सीजन, O2,
फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, Br2, किसी को भी आप लोग ले ले, ये सब डाई एटॉमिक गैस बन के एग्जिस्ट करते हैं। डाई एटॉमिक गैस, दो एटम के साथ एक गैसियस मॉलिक्यूल। ओके, क्या ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट, ये मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सर सारे ब्लॉक्स के लिए। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम लोग प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। जैसे 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे एटॉमिक साइज, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, आयनेशन एंड एंथैल्पी, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद प्रॉपर लॉजिक। ओके, राइट। तो उससे पहले अभी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारा डी ब्लॉक के बारे में। जैसे मैं पहले भी बोला था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर अदरवाइज कॉल्ड एज नथिंग बट योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन बताएगा तुम लोगों में से मुझे, सर इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला गया है? कौन बताएगा बेटा? बताया हूँ लास्ट क्लास या लास्ट टू लास्ट क्लास में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स रहते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नॉन मेटल्स रहते हैं, तो मेटल्स से नॉन मेटल्स के थ्रू डी ब्लॉक रहता है, तो इसलिए उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। Very good. So the transformation or the change from strong metals on the S block towards non-metals in the P block takes place through the D block bridge. ये ब्रिज के थ्रू पास करता है, मतलब वो प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, तो इसीलिए जनरली इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इसके थ्रू ट्रांजिशन होता है। बट एक चीज याद रखना, D block comprises of only metals, transition metals, only metals, chromium, copper, platinum, mercury, okay, only metals, zinc, cadmium, nickel, potassium, sorry, permanganate, not potassium, sorry, that is your manganese, okay, chromium, everything, all of these metals, iron, okay, they will come under your D block. बिलीव नहीं करोगे, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हम लोग एवरीडे यूज में लाते हैं वो डी ब्लॉक का ही है, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही हैं। ओके, सो they comprise of only metals, okay, right. So as we have already discussed, it is going to have 10 groups, okay, and we have also seen the general electronic configuration. Now the D block has how many, मीन्स डी ब्लॉक को हम लोग फर्दर कैसे डिवाइड करते हैं, इसको ना सीरीज में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करता है, 3D सब सेल में एंटर करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज, ये थर्ड पीरियड में रहता है, एंड देन 4D सीरीज, एंड देन 5D सीरीज। ओके, जनरली हम लोग इनको 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज में पढ़ते हैं। ओके, तो डी ब्लॉक को जब भी बोला, किसी ने बोला डी ब्लॉक में क्या तुम लोग 4D सीरीज के बारे में जानते हो? यस यस, हम लोग जानते हैं। फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट आते हैं उन सबको अगर एक सीक्वेंस में रखेंगे तो उसको 4D सीरीज बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। Okay, so this is how we are trying to understand the S, P and D blocks properly. Okay, and F block जैसे मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, F block में, okay, फिर से F block में भी सबके सब मेटल्स ही होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी नॉन मेटल नहीं आएगा आप लोगों को। जब मैं बोल रहा हूँ मेटल, मतलब ये सब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे। क्या शो करेंगे? Positive oxidation state, because being metals they all will only lose electrons, and losing electrons will always form a positive charge on the given metal. So that is why we are saying they will show only positive oxidation state, and even your F block elements comprises only of metals, इनमें सिर्फ और सिर्फ metals ही रहते हैं। क्या ये बात समझ में आया? हाँ सर। तो ये F ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग अदरवाइज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं।
इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ओके, याद रखना आपका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के हेवी एलिमेंट्स जो होते हैं वो जनरली रेडियो एक्टिव रहते हैं। मतलब अगर मैं 3D 4D 5D, तुम बोलोगे सर 6D क्यों नहीं ना, 6D क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, अभी तक पूरी फिल नहीं हुआ है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूं, या इसमें होता क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव एंड वो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में चल जाते हैं बिकॉज वो अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए उनके बारे में हम लोग कुछ खास पढ़ेंगे नहीं हमारे टेक्स्ट बुक में। ओके, सो दैट वाज योर S, P, D and F. Now let us understand what are all the periodic properties जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। I am going to discuss about atomic और ionic radii, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडाई होता है। ओके, एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई इसके बारे में डिस्कस करूंगा। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट से आयोनाइजेशन, नहीं आयनेशन एंथैल्पी नहीं बताऊंगा, उससे पहले मैंने बता दूंगा तुम लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, दो ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है बट स्टिल मैं डिस्कस करूंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंड देन मैं बताऊंगा तुम लोगों को आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, कैसे चेंज करेगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑलराइट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वैरी करता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू टॉप टू बॉटम एंड सो ऑन। सो ऐसे एक एक करके हम लोग ये सारे के सारे जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर। ओके, और ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ा सा काम है तो हम लोग कल वाले क्लास में हम लोग एटॉमिक रेडाई से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। बाय, वेलकम, बाय।